invite Miss Saina Nehwal, Indian badminton player, Olympic medalist and youth brand ambassador. पैसा कमाना तो बहुत है लेकिन जीना कम है। आई थिंक पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि हमें अपना फिटनेस फर्स्ट ऑफ ऑल We're expanding, and our commitment to advancing clean and sustainable energy remains strong. We are on track to becoming filled with the promise of a sustainable future. If there is a balance in nature, there will be a balance everywhere. On sources of borrowing, Welcome him as well in the round of applause. May I now request Shri Bhupinder S. Bhalla, Secretary, Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, to kindly grace the case. Very warm welcome to you, sir. May I invite Miss Saina Nehwal, Indian badminton player, Olympic medalist and youth brand ambassador, to kindly join us on this dais. A very warm welcome. May I now request Shri Ajay Yadav, Joint Secretary, Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, to kindly grace the dais. Namaskar and warm welcome to you, sir. I'd like to request Shri Abhay Bakre, Mission Director, National Green Hydrogen Mission, Ministry of New and Renewable Energy, to kindly grace the dais. Shri Abhay Bakre is going to be joining us shortly, ladies and gentlemen, and I'd also like to request Mr. Nishant Bala Shanmugam, Director GH2 India. Mr. Nishant Bala Shanmugam, Director GH2 India, very warm welcome to you. Multiple international titles, including a Commonwealth Games gold medal and several BWF tournaments, her dedication and skill have made her a trailblazer in Indian sports. Saina is celebrated for her exceptional career as a badminton player, where she has earned accolades and inspired countless young athletes with her dedication and skill. However, her influence extends beyond the sports arena. She's also a committed advocate for environmental sustainability, and her presence at this international conference on green hydrogen is particularly significant. Her participation today truly is a powerful reminder of how influential figures can drive positive change and inspire the next generation of leaders to tackle pressing environmental challenges. Please join me in welcoming Saina Nehwal, whose dedication to both her sport and environmental advocacy exemplifies the spirit of innovation and sustainability that we celebrate at this conference. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais. First of all, thank you so much. As a sports person, जितना भी मुझसे हो सकेगा, I will try and explain about it. लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, हमें आजकल पैसा कमाना तो बहुत है, लेकिन जीना कम है. I think पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि हमें अपना फिटनेस फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान नहीं रहता है. हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि हमें अपना एनवायरनमेंट भी अच्छा रखना चाहिए, अपनी चीज़ें ठीक से रखनी चाहिए. काफ़ी हद तक मैं मतलब इतना वर्ल्ड ट्रैवल करती हूँ, टूर्नामेंट जाती हूँ, एंड कभी कभी मुझे लगता है हम सब, हमारी पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज़्यादा है इंडिया में, तो हम सब अगर एक यूनिटी में आ जाए और सब चीज़ें जैसे है ना एक दूसरे को समझाएं कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमें ठीक रखना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए. हमें आई नो कि कार इतने ज़्यादा हो गए हमारे कंट्री में, इसलिए पोल्यूशन ज़्यादा है. दिल्ली में जो मैं सुन रही हूँ, न्यूज़ में भी सुनती हूँ मैंने रिसेंटली भी सुना कि पोल्यूशन की वजह से 10-12 साल उम्र भी कम होने वाली है फ्यूचर में. आई डोंट नो इफ आई एम राइट अबाउट इट, बट मैंने न्यूज़ में देखा है. इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू थिंक ऑल्सो, क्योंकि लोग अपनी लाइफ में इतनी बिजी हैं और होने भी चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हमें अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है, पढ़ाई करना है, मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे अपना खुद का ध्यान रखना है. बट अगर हम ही नहीं हेल्दी रहेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे ये सब चीज़ें. इट्स नॉट अबाउट टुडे, बट थिंक अबाउट 50 years फ्रॉम नाउ, 100 years फ्रॉम नाउ. ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की इतनी चीज़ें हम देख रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं. इनफैक्ट मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं तो एक ही हूँ ना, मैं सोचूंगी इस बारे में तो कुछ होने के वाला है. पूरा कंट्री अगर सोचेगा तो कुछ चेंजेस आएंगे. इनफैक्ट इन 2014 में हम नए घर पे शिफ्ट हुए, एंड आई वाज obviously 24 years, and I was talking to my father, and he was like, Saina, हमें घर के रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाना है.
मैं बोले पापा क्या बात कर रहे हो, व्हाट इज दैट, यू नो। मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आई थी उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन आज मुझे उसका समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। और आज जब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मैंने एक्चुअली पढ़ा और इतना मैंने सुना सर से, और मैंने जाना कि काश ऐसा फ्यूल रहे जहाँ हमारा जो एयर है और क्लीन हो जाए, और उससे बेटर क्या होगा। क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स जो हम जैसे हैं, हम जब ग्राउंड में रनिंग करते हैं आजकल तो सांस लेना भी दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट मेनी प्लेयर्स, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द साइनस इश्यूज, राइनाइटिस इश्यूज बिकॉज ऑफ द एयर। मुझे तो काफ़ी हद तक एलर्जीज शुरू हुई है बिकॉज ऑफ दैट, एंड इट्स नॉट राइट। क्योंकि मैंने कभी, मेरे से आई थिंक 1-2 जनरेशन बैक आप जाके देखेंगे, इतना साइनस राइनाइटिस मेरे पेरेंट्स को भी मैंने कभी नहीं सुना है। बट आजकल की जनरेशन के बच्चों का मैंने एवरी सेकेंड थर्ड बच्चा बोल रहा है कुछ इशू, मे बी सांस का रहेगा या कुछ तो रहेगा ऐसा, बिकॉज ऑफ दी जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसकी वजह से। तो आई एज ए प्लेयर आई कैन, क्योंकि मुझे चाहिए कि चीज़ें अभी हो जाए, क्योंकि एज ए प्लेयर यू वांट टू डू थिंग्स राइट नाउ। हमें इतना डेडिकेशन से काम करते, डिसिप्लिन से काम करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि कल ही सब ठीक हो जाए। बट ओवर द ईयर जो चेंजेस आ चुके हैं उसको कैसे हम चेंज करें। एज ए यंग एथलीट जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था बैडमिंटन कोई पॉपुलर स्पोर्ट है या आई कैन मेक इट अ बिग स्पोर्ट इन इंडिया, जहाँ पे बॉलीवुड या क्रिकेट इतना बड़ा है। आई नेवर थॉट अबाउट इट, लेकिन आई ट्राइड टू चेंज इट, एंड टुडे आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू सी कि इट्स द सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, एंड so many of young kids want to play badminton. It's just because एक ने सोचा कि पॉसिबल है, तो हम सब अगर यूथ यहाँ पे साथ में मिलके सोचेंगे कि इट इज़ पॉसिबल, कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें रूम गंदा होता है तो साफ करते हैं, राइट। तो कभी कभी रोड पे कुछ भी ऐसा पड़ा हो उठा के डस्टबिन में फेंक दीजिए। कुछ ऐसा ऑब्वियसली, जैसे अभी फ्यूल के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सुन रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ऑप्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हमारी जनरेशन के लिए भी, ऑब्वियसली द फ्यूचर जनरेशन विल डेफिनेटली विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। नहीं तो जैसे चल रहा है, मुझे तो यही डर लगता है सोच के भी कि हम देख पाएंगे कि नहीं। इतना फॉग आ जाता है कभी कभी सामने, दिल्ली में स्पेशली मैंने देखा है होता है, एंड दैट टू मुंबई ऑल्सो इज़ वेरी क्राउडेड। और होना भी चाहिए, क्योंकि सब लोग इतनी सारी गाड़ियाँ खरीदते हैं और खरीदनी भी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। लेकिन विद दैट आई फील थोड़ा सा चेंज हैबिट में अगर होना शुरू हो जाए, कि हम अपने जितने भी चीज़ें हैं उनको सही से रखें, और जो हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स हैं, या आप स्कूल जाते हैं तो आप अपने आप आपके फ्रेंड्स से बात करते होंगे, कॉलेजेस में बात करते होंगे, तो बात करने से बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। एंड आई एज ए प्लेयर आई डेफिनेटली फील कि मैं अगर यहाँ पे खड़े होकर आपको थोड़ा बहुत ये मोटिवेट कर सकूँ कि अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। क्योंकि टुडे जब मैं देखती हूँ मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली 60-65 ईयर्स के हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे दर्द बोल देते हैं, पेट में दर्द है खाने की वजह से, तो हेल्दी खाना खाइए, खाना भी अच्छा खाइए, अपने आप को भी हेल्दी रखिए, थोड़ी देर रनिंग जरूर कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश एयर में जाइए, हो सके तो कार का यूज़ कम कीजिए, अगर 1-2 किलोमीटर चलना हो तो चल के जाइए, थोड़ा रनिंग करके जाइए। बाहर की कंट्री में देखती हूँ इतने सारे लोग थोड़ा रनिंग कर लेते हैं, फिटनेस पे ध्यान रखते हैं। तो इट्स ऑल थोड़ा थोड़ा चेंजेस से कितना चेंज हो जाएगा, यू नेवर नो। ऑब्वियसली मुझे भी ये नई चीज़ है, मैं भी इसको और ट्राई करना चाहूँगी, मैं भी और वॉकिंग पे इन्वेस्ट करना चाहूँगी रैदर देन यूजिंग कार्स। क्योंकि अगर चीज़ें पास में है तो आई विल डेफिनेटली गो वॉकिंग। और अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकती हूँ मैं, अपने आप को कैसे फिट रख सकती हूँ, बिकॉज फाइनली हेल्थ इज़ एवरीथिंग। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव थॉट अबाउट इट कि मेहनत तो करी, मैंने मेहनत करी अचीव करने के लिए, बेस्ट बनने के लिए। लेकिन अगर मैं उस मेहनत को कंटिन्यू नहीं रखूँगी, अगर अपने आप को फिट नहीं रखूँगी, जो भी मैंने सपने देखे वो सब वेस्ट है, इट्स गोइंग टू गो वेस्ट। बिकॉज अनलेस यू मेक योर एनवायरनमेंट गुड एंड हेल्दी। मैं हमेशा पूछते रहती हूँ मम्मी से कि हमारे जो विला है उसके पास इतने सारे प्लांट्स क्यों लगा रहे हैं, इतने सारे ये क्यों कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब मुझे रिप्लाई करते हैं ना, फ्यूचर के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, ग्रीनरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब सुन के मुझे अच्छा लगता है कि 1-2 जो लोग हैं वो चेंजेस करने को रेडी हैं, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते ये। अगर हम सब ने कर दिया तो हमारा मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल बी रियली नाइस टू सी, और मैं आई एम वेटिंग टू सी दैट कि कब हमारे जो कंट्री में है और चेंजेस ऐसे आएंगे कि हम बिल्कुल ही परफेक्ट हर एक चीज़ में हो जाएंगे। मतलब आई फील हमारी कंट्री में स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, लेकिन हम थोड़े से लेजी हैं कई चीज़ों में।
अगर और मेहनत करे, फिट रहे और जो भी चीज़ है इमिडिएटली करे तो ज़रूर रिजल्ट्स फास्ट आएंगे. तो एज ए प्लेयर आई कैन ओनली से गो फॉर द बेस्ट थिंग्स फॉर योर बॉडी, फॉर योर एनवायरनमेंट, एंड आई थिंक इट विल मेक सो मच ऑफ चेंज आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए. अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने कॉलोनी में बात करते रहिए, आप खुद फिटनेस करके दिखाइए, खुद अपने आप को साफ करके देखिए, सराउंडिंग्स को साफ करके देखिए, आपको लोग फॉलो करेंगे. कुछ स्टार्ट करने का आप एक एग्जाम्पल बनिए एंड डेफिनेटली एवरीवन विल फॉलो. थोड़ा आप पे हंसेंगे क्या, अगले दिन वो खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों हंस रहे थे आपके ऊपर, क्योंकि जब खुद पे आती है देन यू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट्स रॉन्ग. तो यू जस्ट डू राइट थिंग्स एंड एवरीथिंग विल फॉलो. एंड आई एम श्योर यू नो बीइंग एन एथलीट मुझे पता है कि अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अपने आपको हेल्दी रखेंगे, सब कुछ बेस्ट रहेगा. बस मेक श्योर आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने प्लानट को भी ऐसे ही हेल्दी रखिए. आप यूथ है, सब कुछ चेंज कर सकते हैं. आप बस बोलने की देरी है और आप ये सब कर सकते हैं. एंड आई एम देयर विद यू ऑल. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू वेरी मच साइना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने आज इस ग्रीन हाइड्रोजन फॉर यू सेशन के लिए समय निकाला और अपने संबोधन से हमारे भावी युवाओं को प्रेरित किया. थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग द यंग लीडर्स. थैंक यू. Ladies and gentlemen, we have to now thank Ms. Saina Nehwal for her presence and her address. Thank you very much for taking the time. May I request Professor Ajay K. Sood, Principal Scientific Advisor to the Government of India, to please do the honours and present her with a small token of her appreciation at this second edition of the International Conference on Green Hydrogen. Ladies and gentlemen, let's hear it once. So much, Saina. You're a true champion of both sports and sustainability. Thank you.